Amen. आमीन। And while we are standing, और जबकि हम खड़े हैं, we turn to Revelations 21. हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां बाब। Amen. Can you, brother, put this down? It's coming directly. Revelations 21, and we are going to read verse 1 and verse 2. प्रकाशित वाक्य 21 और हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। Lord Jesus, we thank you for your word. प्रभु यीशु, हम आपके वचन के लिए धन्यवादित हैं। Now break this bread of life for us. अब इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। And while you are taking your place, जबकि आप अपने स्थानों को ले रहे हैं, we are going to move on further in this message, the future home. हम इस संदेश में आगे बढ़ेंगे जो है भविष्य का घर वाला। And may God bless you and give you your meal. काश खुदावन आपको बरकत दे और आपके भोजन को आपको दे। Last time we were seeing certain things पिछली दफा हम कुछ खास चीजों को देख रहे and we थे laid a background और हमने एक भूमिका को रखा। how this earth and this body are synonymous. कैसे ये पृथ्वी और ये देह जो है ये एक ही मतलब रखते हैं And how the surface of the earth would be changed. और कैसे पृथ्वी की सतह बदल जाएगी। In a similar way, this body would be changed. उसी तरीके से ये देह भी बदल जाएगी। And then that city comes on this earth, और वो फिर जो नगर है इस पृथ्वी पे आता है, which we draw it in a parallel of this theophany coming on us. जिसका हमने समानांतर लिया कि वो थियोफनी हमारे ऊपर आ रही है। In the message, who is this Melchizedek? संदेश में ये मलकीसेदेक कौन है? The prophet said, नबी ने कहा, the difference between you and him as a son. आप में और उसमें एक पुत्र होने के नाते ये है He came through his theophany, कि जो प्रभु यीशु हैं वो अपनी थियोफनी में से होके आए and you bypassed that stage और आपने उस स्थिति को लांग दिया to be tested on this earth. ताकि इस पृथ्वी पे आपकी परीक्षा हो। If you had come through theophany, अगर आप भी थियोफनी से होके आते you would never have been tempted, तो आपकी कभी कोई परीक्षा हो नहीं पाती, because you would have a perfect revelation. क्योंकि आपके पास सिद्ध प्रकाशन होता। But Christ came through his theophany. पर मसीह अपनी थियोफनी में से होके आए। In the beginning was the word, आदि में वचन था, but before the word, पर इससे पहले वचन हो, God was the Spirit. खुदावंद आत्मा थे। Then came the word, फिर आया वचन, and that was the form he enmorphed और ये वो रूप था जिसमें उन्होंने अपने आप को इनमॉर्फी किया, in the prophets नबियों में होके and in various forms, और विभिन्न विभिन्न रूपों में, as a man sometimes, जैसे एक मानो एक आदमी के रूप में, ऐसे olive complexion, जैतूनी रंग का, you can understand it, आप समझ सकते हैं, or a man who was taken up in a fire या एक ऐसा आदमी जो कि आग में ऊपर उठा लिया गया when he visited Manoah's house, जब वो मनोहा के घर में आया and he visited other families. और विभिन्न परिवारों में आया, He took various forms. उन्होंने विभिन्न रूपों को लिया। Amen. आमीन। But he was God enmorphed, पर वो खुदावन इनमॉर्फी थे who enmorphed behind the veil of the prophets. जो कि नबियों की देहों के पीछे पर्दों के पीछे आते थे। That was God. वो खुदावन थे And that was the form और वो रूप था in which he came as Melchizedek. जिस रूप में होके वो मलकीसेदेक में आए, The theophany of God. खुदा का थियोफनी, And took the form of a king on this earth. और एक राजा का रूप लिया इस पृथ्वी पे। When he met Abraham जब उनकी मुलाकात अब्राहम से हुई and he fed him the communion. और उन्होंने उसको प्रभु भोज दिया And he gave him the tithes of all. और इसने अब्राहम ने हर एक चीज का दसवांश दिया। Now that's a deep revelation. अब ये बहुत ही गहरा प्रकाशन है। Abraham gave tithes to a theophany. अब्राहम ने 10वां अंश एक थियोफनी को दिया And a theophany accepted his 10th part. और उसके आमेन उसकी और वो थियोफनी थी जिसने उस 10वें हिस्से को ग्रहण किया।
The 10th part was not given to the Elohim who came in flesh, वो 10वां भाग उस एलोहिम को नहीं दिया गया जो देह में आया था, who came at Mamre, ममरे के समय पे, and whom he entertained, और जिसकी पहनाई करी, and who said, why did Sarah laugh? और जिसने बोला कि सेरा क्यों हंसी। The 10th part was not exercised there, 10वां हिस्सा वहां पर नहीं किया गया, but that was the result of the tithes that came later. पर वो उसका फल था, उसका परिणाम था जो कि 10वां अंश दिया गया था उसका, वहां जो But the बाद में tithes आया। were given to Melchizedek, पर जो टाइट थी वो मलकीसेदेक को दी गई थी, who was a theophany. जो कि थियोफनी थे। If you can understand that. अगर आपको समझ में आए तो Later on, the Levites took the tithe, बाद में लेवी जो थे वो 10वां अंश लेते थे, which were only a जो shadow कि मात्र एक परछाई थे of a real priesthood, एक हकीकी याजक पद्धति के, which would come after the order of Melchizedek, जो कि मलकीसेदेक की रीति के अनुसार आएगा, which would be after the order of theophany. जो कि थियोफनी के क्रम के अनुसार होगा। Priesthood after Melchizedek. पर जो ऐसी याजक पद्धति जो मलकीसेदेक के अनुसार हो, We need to understand that. हमें इसे समझना जरूरी है। And you know the priesthood in the temple, और आप जानते हैं वो याजक पद्धति जो कि मंदिर में है, and they serve the temple. और वो मंदिर की उपासना सेवा करते हैं, Then the priests in this age तो फिर वो याजक जो इस युग में है, are functioning not by their flesh, जो अपने शरीर के द्वारा कार्यान्वित नहीं होते, but are functioning by their theophanies पर अपनी थियोफनियों के द्वारा कार्यान्वित होते हैं in a heavenly temple एक स्वर्गीय मंदिर में, where they are already present जहां पर वो पहले से मौजूद हैं, and receiving a mystery from there और वहां से एक भेद को प्राप्त कर रहे हैं, and preaching in flesh here. और इस शरीर में आके यहाँ पर इसका प्रचार करते हैं, And a flesh receives a tithe, और वो जो देह है वो तो 10वां अंश ग्रहण करती but है, actually it's Melchizedek. पर वास्तविकता में मलकीसेदेक है। Amen. आमीन। Now that's a different line. पर ये दूसरी रेखा है। I want to bring you something else. मैं आपके सामने कुछ और लेके आना चाहता हूँ। Christ didn't bypass his theophany, मसीह ने अपनी जो थियोफनी थी उसको नहीं लांगा, but you and I bypassed पर that. मैं और आप उस थियोफनी को लांग के आए हैं। But now in this age, पर अब इस युग में the theophany came in flesh. थियोफनी है वो शरीर में आई, The word became flesh वचन देहधारी हुआ, in the condescension of God. खुदा के ऊपर से नीचे उतरने में, And now the ascension begins और अब ऊपर चढ़ना चालू होता when है this flesh becomes the word. जब ये शरीर वचन बन जाता है। And now you're going back to that stage which you bypassed. और अब आप वही वापस उस स्थिति पे जाते हैं जिसको आप छोड़ के आए थे। In a parable form, एक दृष्टांत के रूप में while he's explaining this city, जब वो इस नगर को समझा रहे हैं, when he's explaining this future home, जब वो इस भविष्य घर को समझा रहे हैं, he's trying to explain to you and वो I आपके और मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं how this earth कैसे ये पृथ्वी is going to wear that city. वो उस शहर को पहन लेगी। He's trying to explain to you and I वो आपको और मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं the processes this earth goes through, वो क्रियाएं जो जिसके अंदर से ये पृथ्वी गुजरती है, that finally a city comes on it, कि आखिरकार एक नगर उस पे आके बैठ जाता है, which is the new creation. जो कि नई सृष्टि है। Because when that came in Revelations 21, क्योंकि जब ये आया प्रकाश वाक्य के 21वें अध्याय में, it is said like this, वो वहां पर यहाँ के कहा गया है, and there shall be no more death. और आगे को मृत्यु ना होगी। There's no death in that city. उस नगर में कोई मृत्यु नहीं है। There's Amen. death on this earth, इस पृथ्वी पे तो मृत्यु है, but there's no death in that city. पर उस नगर में कोई मृत्यु नहीं है। It's a body not made by hands. ये एक ऐसी देह है जो हाथों के द्वारा नहीं बनाई गई, It's made by the spoken word of God. ये खुदा के बोले वचन के द्वारा बनाई गई है। Neither sorrow, ना तो दुख, nor crying, ना रोना, neither shall there be any more pain. ना ही कोई और पीड़ा होगी। There's no pain in theophanies. थियोफनी में कोई दर्द नहीं होता, For the former things are passed away. क्योंकि पहली बातें सारी जाती रही हैं। When you come to that theophany, जब थियोफनी पे आते हैं, the former things are passed away. पिछली चीजें, पुरानी चीजें सब चली जाती हैं। Former things, जो पिछली चीज है, the 16 elements, 16 तत्व has passed away वो चला गया, into a new body, एक नई देह में आ गया, which is called your glorified condition. जिसे आप कहते हैं, जिसको कहा जाता है आपकी महिमा युक्त स्थिति। And there was no more death. और अब आगे को मृत्यु नहीं रही। He's exactly preaching rapture. वो सटीकता पूर्वक रैप्चर का प्रचार कर रहे हैं, And there was no more death. और आगे कोई मृत्यु ना थी, There's no more sorrow. अब कोई पीड़ा नहीं थी, There's no more crying. कोई रोना नहीं था, There shall be no more pain. कोई दर्द नहीं होगा, For the former things are passed away. क्योंकि
पिछली बातें सारी जाती रहीं। So when you're reading Revelations 21, तो जब आप प्रकाश वाक्य 21 पढ़ रहे हैं, John is showing you the city, यूहन्ना आपको वो नगर दिखा रहा है, but God through the prophet पर खुदावन नबी के द्वारा is showing you a process. आपको एक क्रिया से अवगत करा रहे हैं When you finally strike that rapture कि जब आखिरकार आप उस रैप्चर तक आप पहुंच जाएं and you wear that city, कि आप उस नगर को पहन लें। this body is the earth ये पृथ्वी देह है and the city is the theophany, और जो नगर है वो थियोफनी है, not made by hands, जो कि हाथों के द्वारा नहीं बनाई गई, made in heaven. स्वर्ग में बनाई गई है। I go and prepare a place for you. मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। That's why he didn't see the city on earth. इसलिए उसने नगर को पृथ्वी पे नहीं देखा, He saw it descending from heaven. उसने उसे स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा। In Revelations 10, प्रकाश वाक्य 10वें अध्याय में he saw a mighty angel descending. उसने एक बलि स्वर्गदूत को नीचे उतरते देखा। 11 chapters later, 11 अध्याय बाद he's now seeing a city descending. अब वो एक नगर को नीचे उतरते देख रहा है। A mighty angel descending. एक बलि स्वर्गदूत का नीचे उतरना Now a city descending और अब एक नगर का नीचे उतरना, as a bride एक दुल्हन के रूप में coming down from heaven. स्वर्ग से नीचे आते हुए। If you can catch the revelation, अगर आप प्रकाशन को पकड़ पाए, what's happened, brother? क्या हुआ है मेरे भाई? The mighty angel, जो बलि स्वर्गदूत है, who is the Melchizedek of that city, जो कि उस नगर का मलकीसेदेक है, visits this earth first जो वो पहले इस पृथ्वी पे आता है and meets a seven-lettered man. और 7 अक्षरीय मनुष्य से मुलाकात करता है। वहाँ Give him the revelation of the future उसे hope. भविष्य घर का प्रकाशन देता है। After 1,000 years, 1000 साल के पश्चात that city which the seven-lettered man saw वो नगर जो कि 7 अक्षरीय आदमी ने देखी थी, starts coming down on earth वो पृथ्वी में नीचे आने लगती है and starts people start dwelling in that city. और लोग उस नगर में रहने लगते हैं। Follow that message. इस संदेश को समझिए। And I saw another mighty angel और मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को देखा, come down from heaven. स्वर्ग से नीचे उतरते हुए। Is that right? क्या बात ठीक है? There are some dissensions in Revelation and there are some ascensions in Revelation. कुछ ऐसे नीचे उतरने हैं प्रकाशवाक्य की किताब में और कुछ ऐसे ऊपर चढ़ने हैं प्रकाशवाक्य की किताब में। In chapter 4, 4 अध्याय में I heard the voice of a trumpet. मैंने एक तरीके से शब्द को सुना, Immediately I was in the spirit. एकदम से मैं आत्मा में आ गया। What is that chapter? वो अध्याय क्या है? Ascension. ऊपर उठाया जाना, John being taken up. यूहन्ना ऊपर ले जाया जा रहा है। That's an ascension chapter. ये एक ऊपर उठने का अध्याय है। Revelation 10. प्रकाशवाक्य 10 I saw another mighty angel मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को देखा descending from heaven जो कि स्वर्ग से नीचे उतर रहा था with an open book, एक खुली पुस्तक के साथ, giving that book to an angel और उस पुस्तक को एक दूत को दे रहा है who would preach that book. जो कि उस पुस्तक का प्रचार करेगा। Amen. आमीन। 11 chapters later, 11 अध्याय बाद में you find a city is descending, आप पाते हैं एक नगर नीचे उतर रहा है which is prepared as a bride. जो कि एक दुल्हन के रूप में तैयार किया गया है। And the same angel, और यही दूत one of the seven, उन 7 में से who had the vials, जिसके पास कटोरे थे, and you have the revelation, और आपके पास उसका प्रकाशन है, the seventh messenger, वो 7वां संदेशवाहक told John, उसने यूहन्ना से कहा, come, आ, let me show you the bride, मैं तुझे दुल्हन को दिखाऊंगा, the lamb's wife. मेमने की पत्नी को। Where was the bride? ये दुल्हन कहाँ थी? The city. वो नगर। आमीन, हालेलुया। The bride was not the earth. जो दुल्हन थी वो पृथ्वी नहीं है, The bride was the city जो दुल्हन है वो नगर है which God had married. जिससे शादी खुदा ने करी I है। hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। That's why the prophet said, इसे नबी ने कहा, he transferred your old name उसने आपके पुराने नाम को स्थानांतरित किया to the lamb section, मेमने वाले भाग में, gave you your new name, और आपको आपका नया नाम दिया, your marriage certificate, आपका विवाह का प्रमाण पत्र, which is your born again experience. जो कि आपका नया जन्म का अनुभव है। Former things are passed away. पुरानी बातें जा चुकी हैं, Behold, I make all things new. देखो मैं सब चीजें नया करता हूँ। That's the message in this hour. ये है वो संदेश जो इस घड़ी में है। Under that great seventh seal, उस महान 7वीं मोहर के नीचे, the coming of the Lord, प्रभु की आमद के नीचे, the revelation of the Son of Man, मनुष्य के पुत्र के प्रकाशन के when the Son of Man is revealed, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होता that's है, the age ये है वो युग when a city comes on the earth. जब एक नगर पृथ्वी पे आता है। He's preaching future hope, वो भविष्य घर का प्रचार कर रहे and he's हैं asking his son, और वो अपने बेटे से पूछते did हैं, you really understand it? क्या तुमने वास्तविकता में समझा इसे? He said, yes, daddy.
उन्होंने कहा जी हाँ पापा मैंने He said, I समझा। can count them on my fingers. उन्होंने कहा मैं अपनी उंगलियों में गिन सकता हूँ, Because to get to this spot, क्योंकि इस बिंदु पे आने के लिए you need a revelation. आपको एक प्रकाशन की जरूरत है। Right from the beginning of the message, ठीक संदेश की शुरुआत से he's drawing a parallel. वो एक समानांतर दिखा रहे हैं, Earth and this body, पृथ्वी और ये देह, city and your theophany. नगर और आपकी थियोफनी। He's not using the word theophany, वो थियोफनी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, but he's using it here and there. पर वो उसको इधर उधर इस्तेमाल करते हैं, But he's talking about that पर वो theophany बात कर रहे हैं इस थियोफनी के विषय में, where you and I are coming to in this age. जहां पर आप और मैं पहुंच रहे हैं इस युग में। If you can understand the message, अगर आपको संदेश समझ में आए, I, John, saw the holy city. मुझ यूहन्ना ने पवित्र नगर को देखा, I saw that theophany मैंने उस थियोफनी को देखा descending from heaven. जो कि स्वर्ग से उतर रही है। Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, we saw the capstone of that city हमने उस नगर के चोटी के पत्थर को देखा, descending नीचे उतरते हुए and ascending. और ऊपर उठते हुए। आमेन। We need to Hallelujah. understand the message. मैं समझने की जरूरत है संदेश को। Blessed be the name of the Lord, मुबारक हो खुदावन का नाम, because that's the message in this age. क्योंकि यह वो संदेश इस युग में